Hello, Namaskar. I am Santosh Kumar Pradhan and welcome back to my YouTube classes Odisha E-Economics. ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2022-23 ସେସନର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା E-Economics କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେମାନେ 2022-23 ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ନୂତନ ସିଲାବସ୍ ବା ନ୍ୟୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 22-23 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମର ଏଇଟା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା CHEC ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି 19 ଜୁଲାଇ 2022 ରେ ଆସିଥିଲା। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ଦେଖ, ଆମର ନୋଟିସଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା consequent upon approval of the government in school and mass education department VIDE letter number SME date 16/7/2022 this is notified for all concerned that CHE has reintroduced 100% syllabus along with its quotation prevailing in the session 2019-20 ତାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍। କାରଣ ଆମର ତୁମେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2 ଇୟର ହେଲା 70% ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର 100% ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 50% MCQs ଆସୁଥିଲା 2021-22 ରେ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେସନ 2019-20 ରେ ଯେମିତି ପାଟର୍ନ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ, ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଉଭୟ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଭୋକେଶନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। Further, it is clarified the regular students appearing annual HS examination 2023 and onwards shall appear the examination will full syllabus 100% and previous pattern of the question as detailed in the 2019 syllabus। ସେମାନେ 2019 ର ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲାବସ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଆମର ସିଲାବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଚାପ୍ଟର 1 ବା ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଡେଫିନେସନ୍, ସ୍କୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା, ପରିସର ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ବା ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ସ୍କାର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍, ହ୍ୱାଟ୍, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହୁମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ତାପରେ ସ୍କାର୍ସିଟି ଏବଂ ଚଏସ୍, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହୁମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଏଥିରେ ପଢିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ଅବଧାରଣା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନା ୱାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ, ୟୁଟିଲିଟି ଉପଯୋଗିତା, ଗୁଡ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭ୍ୟାଲୁ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରାଇସ୍ ଦର ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର 1 ର କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାପ୍ଟର 2 କନଜମ୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଉପଭୋଗ ଓ ଚାହିଦା। ଏଥିରେ ତମକୁ କ'ଣ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଲଜ୍ ଅଫ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ଉପଭୋଗର ନିୟମ, କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାର୍ଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା, ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଇକ୍wi ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ବା ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ନିୟମ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନର ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ବା ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
नेक्स्ट अच्छी डिमांड बा चाहिदा चाहिदारे कौन पढ़िबो ना मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स अर्थात तार अर्थ एवं निर्धारक गुड़िक अध्ययन करने को पड़िबो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व व्यक्तिगत चाहिदा रेखा चाहिदा सूची एवं बाजार चाहिदा रेखा चाहिदा सूची कौन मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व चाहिदा रे परिवर्तन एवं चाहिदा रेखा रे परिवर्तन से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो नेक्स्ट अच्छी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात चाहिदार दर स्थितिस्थापकता से विषय रे कौन अच्छी ना तार कॉन्सेप्ट एवं डिटरमिनेंट्स तापरे नेक्स्ट अच्छी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात चाहिदार दर स्थितिस्थापकता को किपरि भाबरे निर्धारण करा जाए से विषय रे अध्ययन करिया को पड़िबो किपरि ताकू मपा जाए तापरे परसेंटेज एंड जियोमेट्रिक मेथड तार मेथड कौन रही परसेंटेज बा शतकड़ा पद्धति जियोमेट्रिक बा ज्यामितिक पद्धति विषय रे पढ़िबा को पड़िबो नेक्स्ट अच्छी रिलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ टोटल एक्सपेंडिचर बा मोट व्यय सांगरे आमर प्राइस बा दर स्थितिस्थापकतार कौन संपर्क रही से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो नेक्स्ट चैप्टर 3 रे कौन अच्छी ना प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन उत्पादन रे आमको मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन अर्थ प्रोडक्शन फंक्शन बा उत्पादन फलन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बा स्वल्पकाल और दीर्घकाल से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट अर्थात मोट हाराहारी और सीमांत उत्पाद विषय रे पढ़िबा को पड़िबो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर अर्थात परिवर्तनीय अनुपात सूत्र कौन से विषय रे अध्ययन करबा को पड़िबो नेक्स्ट चैप्टर 4 बा यूनिट 4 रे कौन पढ़िबा को पड़िबो देखिबा कॉस्ट अर्थात परिव्यय रेभिन्यू अर्थात आय एवं जो सप्लाय अर्थात जोगान विषय रे पढ़िबा फर्स्ट अछि कॉस्ट रो कौन पढ़िबा ना मनी एंड रियल कॉस्ट मौद्रिक परिव्यय वास्तव परिव्यय इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लिसिटी कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड देयर रिलेशनशिप एथिरे समस्त प्रकार प्रच्छन्न परिव्यय लुकायित परिव्यय स्थिर परिव्यय परिवर्तनीय परिव्यय मोट परिव्यय हाराहारी परिव्यय सीमांत परिव्यय इत्यादि विषय रे अध्ययन करबा को पड़िबो रेभिन्यू रे कौन ना एवरेज एंड मार्जिनल रेभिन्यू एंड देयर रिलेशनशिप अर्थात आय रे हमकु मोट आय हाराहारी आय एवं सीमांत आय विषय रे अध्ययन करबा को पड़िबो सप्लाई रे हमकु मीनिंग एंड लॉ ऑफ सप्लाई अर्थात जोगान एवं जोगान सूत्र विषय रे अध्ययन करबा को पड़िबो नेक्स्ट यूनिट 5 आमे देखिबा यूनिट 5 बा चैप्टर 5 रे हमकु मार्केट अर्थात बाजार विषय रे पढ़िबा को पड़िबो बाजार रे हमकु मीनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट अर्थात बाजार अर्थ एवं बाजार प्रकार भेद विषय रे पढ़िबा को पड़िबो प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन अर्थात शुद्ध एवं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रे दर किपरि निर्धारित हुए से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई चाहिदा एवं जोगानर परिवर्तन विषय रे मध्य पढ़िबा को पड़िबो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे नेक्स्ट अछि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली अर्थात एकाधिकार बाजार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्थात एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बाजार ऑलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार बाजार विषय रे पढ़िबा को पड़िबो नेक्स्ट अच्छी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बा प्रारंभिक समष्टि अर्थनीति एथिरे कौन आमे पढ़िबा चैप्टर 6 रे ना इंट्रोडक्शन अर्थात सेथिरे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थनीति रो अर्थ कौन डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति मध्य रे पार्थक्य विषय रे पढ़िबा सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विषय रे अध्ययन करबा को पड़िबो कोन तार विषय वस्तु रहिछि नेक्स्ट अछि चैप्टर 7 रे अछि नेशनल इनकम विषय रे पढ़िबा को पड़िबो फर्स्ट रहिछि मीनिंग एंड रिलेटेड एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम तार अर्थ कोन एवं सबु तार सामूहिक कोन सबु रिलेटेड एग्रीगेट्स रहिछि नेशनल इनकम बा जातीय आय रो से विषय रे पढ़िबा को पड़िबो जेउथिरे कि हमें जीएनपी बा ग्रॉस
national product, NNP net national product, GDP gross domestic product, NDP net domestic product at market price and factor cost ए विषय रे देखिबाकू पड़िबो, बाजार दर रे देखिबाकू पड़िबो। तापरे national disposable income उभय ग्रॉस एवं नेट बोथ पढ़िबाकू पड़िबो। प्राइवेट इनकम व्यक्तिगत आय, बेसरकारी आय एवं पर्सनाल इनकम बा जहाकू पर्सनाल इनकम बा व्यक्तिगत आय ए विषय अध्ययन करने पड़ो। पर्सनाल डिस्पोजेबल इनकम से विषय अध्ययन करने पड़ो। नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड बा सामूहिक चाहिदा एवं सप्लाय सामूहिक जोगाण एवं देयर कंपोनेंट्स विषय अध्ययन करने पड़ो। तापरे नेक्स्ट अच्छी सिंपल केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, केन्स कर थ्योरी रे आय किपरि निर्धारित हुए से विषय पढ़ा पड़ो। तापरे नेक्स्ट बा शेष यूनिट आमर कौन रही मनी बा मुद्रा, बैंकिंग अर्थात बैंक एवं पब्लिक फाइनेंस बा राष्ट्र वित्त विषय पढ़ा पड़ो। एथिरे आमे माने मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी अर्थात मुद्रार अर्थ एवं तार फंक्शंस बा कार्य कौन से विषय पढ़ा पड़ो। नेक्स्ट अच्छी मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक बा वाणिज्यिक बैंक रो कार्य एवं तार अर्थ कौन। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक रो कार्य कौन। मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राष्ट्र वित्तर अर्थ। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस अर्थात आमर व्यक्ति वित्त एवं राष्ट्र वित्त मध्य कौन डिफरेंस बा पार्थक्य रही से विषय अध्ययन करने पड़ो। बजेट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, बजेटर लक्ष्य एवं अर्थ विषय अध्ययन करने पड़ो। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजेट, समतुल और असमतुल बजेट। सरप्लस एंड डेफिसिट बजेट अर्थात बलका और नियंटिया बजेट विषय अध्ययन करने पड़ो। ओवरऑली तुम मानकर सिलेबस फिनिश हो जाइए एवं तुम मानक गोटे इनफॉरमेशन देबाकू चाहिए जे तुम मानकर 2022-23 सेक्शन रो नूतन पिला मानक पई आमर ओडिशा ई इकोनॉमिक्स रो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाइए एवं सेथिरे मध्य मु सबु यूनिट रो वीडियोज विथ नोट्स मध्य प्रोवाइड करूची। तो जो माने जॉइन हेइन से माने मते मो व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करिकी जॉइन हो पारिबो। कारण तुम मानक ए वर्ष बहुत सीरीयस रे पाठ पढ़ा पड़ो कारण तुमर 100% सिलेबस अच्छी एवं तुमर प्रीवियस बा 2019 एग्जाम पैटर्न मध्य रही। तो तुम्हें माने मते एई नंबर रे सॉरी 9410 এই नंबर रे मेसेज करिकी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेबा पई कहि परिबो एवं जॉइन हेकी तुमे आराम से इजीली पाठ पढ़ी परिबो। धन्यवाद।